بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اکرم خوسو۔ آج کے اس لیکچر میں، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اس ریجن کو، یہاں کے کنٹریز کو، کنگڈمز، آئی لینڈز، ٹیریٹریز، جو کافی کنفیوزنگ بھی ہیں، تو لہٰذا آج ان کو سمجھتے ہیں میپ کے ذریعے اور ہسٹری کے ذریعے۔ یہ وہ ٹرمز ہیں، یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ یو کے۔ بہت سارے ہمارے فرینڈس، بہت سارے ہمارے جو ہیں کلیگز، دے بیکم کنفیوزڈ کہ یو کے کیا ہے، گریٹ برٹن پھر کیا ہے، انگلینڈ کیا ہے، ان کو سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہے اسکاٹ لینڈ، ویلز، ان کو سمجھتے ہیں۔ پھر یہ ہے آئرلینڈ۔ اب یہ آئرلینڈ ہے تو پھر یہ ریپبلک آف آئرلینڈ اور ناردرن آئرلینڈ، ان میں کیا ڈفرنس ہے، تو ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں میپ کے ذریعے۔ بالکل ان کو ایزی کریں گے آپ لوگوں کے لیے ہم۔ پھر یہ ہے آئل آف مین۔ آئل کا مطلب کیا ہے، آئل آف مین کیا ہے، اور برٹش آئلز۔ ان تمام ٹرمز کو جو ہیں آج ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون۔ بالکل ایزی ہو جائیں گے آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ بھی کوئی کنفیوژن جو ہیں فیس کر رہے ہیں ان ٹرمز کو، ان جو ہیں ڈفرینٹ نیمز کو لے کر، کون سے یہاں پہ ساورن کنٹریز ہیں، کون سے جو ہیں کون سا ایریا، کون سا جو ہے وہ ٹیریٹری کس کنٹری کا پارٹ ہے، تو ان کو بالکل آپ لوگوں کے لیے ہم ایزی کر دیتے ہیں۔ ہسٹری کو سمجھتے ہیں کہ ان کے اگریمنٹس، یونینس کب ہوئے ہیں۔ لاز اینڈ ویلز ایکٹس 1535 1542 دو لاز پاس کیے گئے تھے، اور یہاں پر ویلز نے آفیشلی جوائن کیا انگلینڈ کو، یعنی کہ یہ جو انگلینڈ ہے اس نے اگریمنٹ سائن کیا اس کے ساتھ، ویلز کے ساتھ، اور ویلز کو جو ہیں پولیٹیکلی اور لیگلی اپنے ساتھ شامل کر دیا، دونوں ایک ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد یہ جو اگریمنٹ ہے کافی فیمس یا بہت ہی افیکٹو اگریمنٹ دی ایکٹس آف یونین کہلاتا ہے۔ انگلینڈ، ویلز اینڈ اسکاٹ لینڈ کریٹڈ گریٹ برٹن۔ یہ کنٹری کا نام تو سنا ہوگا جب ہم پڑھتے ہیں انڈو پاکستان کی ہسٹری کو، جب بھی تاریخ میں جاتے ہیں وی کم ٹو نو اباؤٹ دس ٹرم گریٹ برٹن۔ اب انگلینڈ کے ساتھ تو پہلے سے ہی ویلز شامل ہو گیا، پھر یہاں پہ آتا ہے یہ اسکاٹ لینڈ۔ تو انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ نے مل کے 1707 میں ایک اگریمنٹ سائن کیا، اور یہ تینوں جو ہیں مل کے ایک یہاں سے کنٹری بن جاتا ہے، دیٹ کنٹری نون ایز گریٹ برٹن۔ یوں سمجھیں یہ ایک جغرافیکل ٹرم بھی ہے۔ گریٹ برٹن جو ہے یہ ایک جغرافیکل ٹرم بھی ہے۔ یہ جو جزیرہ، یہ جو آئی لینڈ ہے جہاں پہ یہ انگلینڈ ہے، جہاں پہ انگلینڈ ہے، ویلز ہے، اسکاٹ لینڈ ہے، ایکچولی یہ جو سارا کا سارا آئی لینڈ ہے، دس آئی لینڈ از نون ایز گریٹ برٹن۔ تو گریٹ برٹن جو کنٹری تھا اس کے تین پارٹس تھے، اس کے تین جو ہیں وہ ٹیریٹریز تھے، انگلینڈ، ویلز اینڈ اسکاٹ لینڈ، اور یہ بنا 1707 میں۔ پھر یہاں پہ 1801 میں جو ہیں ایک اور ایکٹس آف یونین، جہاں پہ گریٹ برٹن کو جوائن کرتا ہے آئرلینڈ۔ اب یہ جو جزیرہ، یہ جو آئی لینڈ ہے، اس کا نام ہی ہے آئرلینڈ۔ یہ جزیرے کا، اس آئی لینڈ کا، اس کے آج دو پارٹس ہیں۔ اس کا آج یہ ہے ناردرن آئرلینڈ، یہ الگ ہے، اور جو ساؤدرن سائیڈ ہے یہ ساورن کنٹری ہے، یہ الگ ہے، لیکن تب یہ ایک ہی تھا۔ تو اس آئرلینڈ نے جو ہیں گریٹ برٹن کے ساتھ خود کو مرج کر دیا، 1801 کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ورلڈ وار 1 کے بعد، ورلڈ وار جب 1 لگا تو اس کے بعد یہاں پر نا ایک سول وار، یوں سمجھیں کہ اپرائزنگ اس جزیرے میں، ان آئرلینڈ۔ اب 1914 سے 1918 تک ورلڈ وار 1 چلا، اور پھر یہاں پر جو ہیں آئرش وار آف انڈیپینڈنس کہلاتا ہے، فرام 1919 ٹو 1921۔ یہاں پہ آئرلینڈ نے جنگ کیا اگینسٹ گریٹ برٹن کہ ہمیں چاہیے آزادی، ہمیں چاہیے فریڈم،
दिस इज़ नोन एज आयरिश वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर होता कुछ यूँ है, जब ये जंग किया आयरलैंड ने अगेंस्ट ब्रिटिश और अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, तो फिर यहाँ पर एक अग्रीमेंट साइन करते हैं, 1921 की बात है, द एंग्लो आयरिश ट्रीटी। फिर यहाँ पर जो है आयरिश फ्री स्टेट नॉन एज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वाज क्रिएटेड, इसको मिल गई आज़ादी। अब यहाँ पर कुछ यूं हुआ कि इस ट्रीटी के तहत ये जो साउदर्न साइड है, दिस वन, ये अलग मुल्क बन जाता है। आयरलैंड, इट इज ऑफिशियली नोन एज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये अलग मुल्क बन गया, सॉवरेन कंट्री बन जाता है यहां से, ठीक है। और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, इट रिमेन्ड द पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और दिस वन, इसने कहा कि मैं इसके साथ शामिल नहीं होऊंगा, मैं आपके साथ ही स्टे करना चाहता हूं। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये फिर रहा ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही। तो ये 1922 को जो है इम्प्लीमेंट होता है ये ट्रीटी। फिर यहाँ से क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। जो पहले ग्रेट ब्रिटेन था, अब यहाँ पर यूके बन गया। नॉर्दर्न आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन मेड द यूके। अब देखें जरा, पहले इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड नोन एज ग्रेट ब्रिटेन। अब यहाँ पर चौथा हिस्सा, फोर्थ पार्ट आ गया, या टेरिटरी आ गया, किंगडम आ गया, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो फिर इसका नाम होता है चेंज, इसको यूके कहा जाता है। तो रिमेंबर, 1707 से पहले आप सेपरेटली नाम लेंगे, यानी कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, और उसके बाद 1707 to 1922 यू विल हैव टू से ग्रेट ब्रिटेन। वर्ल्ड वार 1 की बात करते हैं तो हमें कहना पड़ेगा ग्रेट ब्रिटेन, यूके नहीं कहेंगे हम। और 1922 के बाद जब ये नॉर्दर्न जो आयरलैंड है, ये हिस्सा बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन का, तो फिर इसको यूके कहते हैं। 1922 के बाद टिल टुडे इट इज नोन एज द यूके। तो अभी यहां पर जो है देखा जाए तो 2 कंट्रीज हैं। अब कंट्रीज 2 हैं, सॉवरेन कंट्रीज, यूएन के मेंबर्स, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स, सॉवरेन स्टेट्स आज यहां पे 2 हैं। वो कौन से हैं? एक यूके है, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये खुद कंट्रीज नहीं है, दे आर नॉट सॉवरेन कंट्रीज, they are the part of the UK and the UK is a sovereign state। एक UK कंट्री हो गया, ठीक है। दूसरा दिस वन, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये कंट्री बन गया। 2 सॉवरेन कंट्रीज हैं। तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, दीज 4 आर द पार्ट्स ऑफ द UK। समझ गए मेरी बात को? ज़रा इसको और आप लोगों के लिए हम इजी कर देते हैं। अब जब आप ये टर्म सुनेंगे ग्रेट ब्रिटेन के नाम से, तो ये तीनों नाम याद कीजिएगा कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स नॉन कंबाइनली एज ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पर ये जो हैं, यहाँ पर ये वेल्स है, और ये जो हैं यहाँ से ये इंग्लैंड हो जाता है, ठीक है जी। फिर यहाँ से ये है, ये स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों मिला के बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन को। तो यूं समझें, ये जो जजीरा, जो आइलैंड है, जहाँ पर इंग्लैंड है, वेल्स और स्कॉटलैंड है, दिस आइलैंड इज नोन एज ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो नाम है, ये ज्योग्राफिकल नाम भी है, पॉलिटिकल तो यही है, ये ज्योग्राफिकल नाम भी है। दिस आइलैंड ऑफ यूरोप, it is part of the Europe. This island is known as Great Britain, having 3 parts, England, Scotland and Wales। और ये जो हैं 1707 को एक पॉलिटिकल जो है यूनियन बन जाता है। फिर यहाँ पे आता है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके। अब यूके में क्या है, फिर यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये तो पहले से ही थे इन ग्रेट ब्रिटेन। 4th पार्ट कौन सा है इनका? ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो जब ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो हैं इनके साथ शामिल हो जाता है, 1922 की बात है, तो फिर यहां पर ये यूके कहलाता है। देयर आर 4 किंगडम्स, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द यूके, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स।
ठीक है, तो आज ग्रेट ब्रिटेन आप नहीं कहेंगे, इट इज द यूके जो कि सॉवरेन कंट्री है। क्लियर? अच्छा जी, फिर यहां पर यह है आयरलैंड। जो आयरलैंड है खुद एक आइलैंड, जजीरा। ये जो आइलैंड है, जजीरा है, इसका नाम है आयरलैंड, जिसके आज दो पार्ट्स हैं। दिस आइलैंड इज नोन एज आयरलैंड, द होल आइलैंड ऑफ आयरलैंड। क्लियर? इसके अभी दो पार्ट्स हैं। एक ये कंट्री है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अब यहां पर जो सॉवरेन कंट्री है, यूएन का मेंबर है, वो ये है, दिस वन। इसका ऑफिशियल नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इट इज जस्ट नोन कॉमनली एज आयरलैंड। तो ये सॉवरेन कंट्री है। और फिर जिसका नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न आयरलैंड, इट इज पार्ट ऑफ द यूके। समझ गए मेरी बात को जी? फिर यहां पे सुनेंगे आइल ऑफ मैन। ये आइल ऑफ मैन क्या है? देखिए, आइल का मतलब है एन आइलैंड, एक जजीरा। ठीक है, ये आइल ऑफ मैन। अब यहां पर आपको मिलेगा एक स्मॉल आइलैंड, एक जजीरा मिलेगा आपको। ये ग्रेट ब्रिटेन है और इसके साथ इसको हम यूके कह देते हैं। ठीक है, और ये आयरलैंड है। तो यहाँ जो ये पानी है, दिस वाटर इज नोन एज इरिश सी, और इसमें यहाँ पर ये है एक आइलैंड, ये जजीरा है, और इसका नाम क्या है? आइल ऑफ मैन। ये नई पार्ट है यूके का, ये नई पार्ट है आयरलैंड का। इट इज अंडर क्राउन, अ क्राउन डिपेंडेंसी, इसकी अलग हैसियत है आइल ऑफ मैन की। ठीक है, फिर ये है ब्रिटिश आइल्स। ये ज्योग्राफिकल टर्म है, ब्रिटिश आइल्स, यानी कि ब्रिटिश के आइलैंड्स। अब यहां पर ग्रेट ब्रिटेन भी है, जो खुद आइलैंड, यानी कि वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, जो सारा का सारा ये जजीरा, ये आइलैंड है, ये भी है। आयरलैंड, जहां पर ये आज नॉर्दर्न आयरलैंड है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, दोनों इसमें आ जाते हैं। आइल ऑफ मैन, ये जजीरा, ये वाला आइलैंड भी, एंड अदर स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स जो बाकी मिलेंगे आपको, स्मॉल स्मॉल यहाँ पे आइलैंड्स, वो सब मिला के ये ज्योग्राफिकल टर्म है इन तमाम आइलैंड्स के लिए, टेरिटरीज के लिए। दीज ऑल, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, या इसको आज कुछ यूं कह सकते हैं कि यूके भी, आयरलैंड भी, और ये जो आइल ऑफ मैन है ये भी। लेकिन ये ज्योग्राफिकल टर्म है तो इसको हम यूज करेंगे ज्योग्राफिकली कि जजीरे, आइलैंड्स। एक ये आइलैंड है, इट इज आयरलैंड। ये आइलैंड है ग्रेट ब्रिटेन, ये आइलैंड है आइल ऑफ मैन। जो बाकी और भी यहां पे आइलैंड्स हैं, दीज ऑल आर नोन ज्योग्राफिकली एज ब्रिटिश आइल्स। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल टर्म, इट इज जस्ट अ ज्योग्राफिकल टर्म। समझ गए मेरी बात को? वेरी गुड। अब यहां पर आप इस बात को लाजमी याद कीजिएगा, जो कंफ्यूजन वो ये है कि भाई यहां पे कौन से कंट्रीज हैं। हम सुनते हैं कि इंग्लैंड की अलग क्रिकेट टीम है। हमारे पास लोग क्या समझते हैं, पाकिस्तान इंडिया के अंदर जिस तरह हमारे पास 4 सूबे पाकिस्तान के अंदर हैं, हमारे पास टेरिटरीज भी हैं, हम कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की अलग एक ही टीम है, क्रिकेट टीम है। लेकिन यहाँ यूके के अंदर इंग्लैंड की टीम है, स्कॉटलैंड की अलग टीम है। फिर ये कैसे? भाई उनके पास कुछ राइट्स मौजूद हैं, वो कंट्रीज नहीं है, कंट्री एक है वहां पर, यूके। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ आपको 2 सॉवरेन कंट्रीज मिलेंगे। आज ग्रेट ब्रिटेन कंट्री नहीं है, एक ये कंट्री है यूनाइटेड किंगडम यूके, दूसरा ये कंट्री है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। 2 कंट्रीज हैं, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड सॉवरेन कंट्री है, दूसरा यूके जिसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी है, स्कॉटलैंड भी है, इंग्लैंड भी है और ये वेल्स भी है। तो ये चारों मिलके यूके बनाते हैं। दीज 4 आर द पार्ट्स ऑफ द यूके। तो ये इंग्लैंड इज नॉट अ सॉवरेन कंट्री, स्कॉटलैंड सॉवरेन कंट्री नहीं है, वेल्स सॉवरेन कंट्री नहीं है, जो नॉर्दर्न आयरलैंड ये सॉवरेन कंट्री नहीं है। कुछ उन्होंने अग्रीमेंट साइन किए, दे आर पार्ट्स ऑफ द यूके एंड द यूके इज अ सॉवरेन कंट्री और सॉवरेन स्टेट। तो यहां पे 2 कंट्रीज हैं, 2 सॉवरेन स्टेट्स कहलाते हैं, यूके एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड।
समझ के मेरी बात को यहां पर आप लोग। अच्छा जी, तो कोई पूछे आपसे भाई ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या है? भाई ये जजीरा, ये आइलैंड जहां स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है, और पहले एक ये पॉलिटिकल यूनियन था, आज पॉलिटिकल यूनियन भी ये नहीं है, बिकॉज देयर इज द यूके। जब से यहां पर 1922 में शामिल हो जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड, तो यूके के आज ये 4 पार्ट्स हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है, और ये अलग एक कंट्री है, आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। क्लियर ना हो? अच्छा जी, अब यहां पर ना जो सिटीज हैं, कैपिटल्स हैं, वो बहुत पूछ लेते हैं। मसलन लंदन इज द कैपिटल सिटी ऑफ द यूके, जो कि इंग्लैंड में है, और ये जो डबलिन है द कैपिटल सिटी ऑफ आयरलैंड। उसके अलावा जो यूके के 4 किंगडम्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, फेमस हैं, तो उनके भी कभी सवाल पूछते हैं। मसलन कैसे? यहां पर ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, बेलफास्ट इट्स कैपिटल सिटी। हालांकि ये सॉवरेन कंट्री नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ द यूके, लेकिन याद करना इसका कैपिटल भी, उनके पास काफी खुद मुख्तियारी ऑटोनॉमी इसके लिए। बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, ये कार्डिफ वेल्स, और जो लंदन है ये दोनों का कैपिटल सिटी है, इंग्लैंड का भी और यूके का भी। लंदन इज द कैपिटल ऑफ बोथ द यूके एंड इंग्लैंड। ठीक है, तो ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड ये अलग कंट्रीज नहीं हैं, सॉवरेन कंट्रीज नहीं हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द यूके। इनके पास खुद मुख्तियारी है, बहुत सारे राइट्स हैं, तो इनकी अलग आपको मिलेंगे क्रिकेट टीम वगैरह और फुटबॉल टीम भी कुछ इस तरह। तो यहाँ पे 2 सॉवरेन कंट्रीज हैं, यूके और आयरलैंड, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। क्लियर नाउ? समझ के मेरी बात को? गुड, ओके, यहां से आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एमसीक्यूज भी हैं। व्हिच कंट्री इज द कैपिटल सिटी लंदन लोकेटेड इन? इट इज इंग्लैंड जी, इट इज इंग्लैंड। व्हिच 3 कंट्रीज, अब ये इनफॉर्मली तौर पे इनको कंट्रीज भी कहा जाता है, हालांकि ये वो कंट्रीज नहीं जिनको हम कंट्रीज कहते हैं फॉर्मली, इट इज इनफॉर्मल नेम। Which 3 countries make up ग्रेट ब्रिटेन? यहां पे इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है, ये तीनों बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन, जो वहां पे जजीरा आइलैंड है। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पर है द यूके इज ऑफिशियली नोन एज, ऑफिशियल नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ऐसा ही है। यूके यूं कभी कहते हैं कि यूके इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है, प्लस क्या नॉर्दर्न आयरलैंड, क्या बन गया? यूके यहां से बन जाता है। विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ द यूके? अब इंग्लैंड भी हिस्सा है, पार्ट है यूके का, स्कॉटलैंड भी यूके का पार्ट है, वेल्स भी है, और ये पार्ट नहीं है, ये अलग सॉवरेन कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड? एडिनबर्ग। और ये चाहता है आज़ादी, वहां पे तहरीकी भी चल रही है, रेफरेंडम वहां पे हुआ था स्कॉटलैंड के अंदर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेल्स? इट इज कार्डिफ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड? बेलफास्ट। 1912 में यहां से जो है टाइटैनिक का आगाज होता है बेलफास्ट से, तो न्यूयॉर्क, फिर अनफॉर्चुनेटली उसके साथ एक हादसा पेश आ जाता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड? डबलिन। विच आइलैंड कंप्राइजेज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स? हाँ जी, कौन सा वो जजीरा है, कौन सा वो आइलैंड है जहां पे इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड और वेल्स है? दैट आइलैंड इज नोन ग्रेट ब्रिटेन। ये ज्योग्राफिकल टर्म है, वैसे भी ये पॉलिटिकल था। फ्रॉम 1707 टू 1922 पॉलिटिकल हुआ। आज इसको हम नहीं कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, इट इज नाउ नोन एज द यूके बिकॉज ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। लेकिन अगर देखा जाए तो ज्योग्राफिकली ये जजीरा है ग्रेट ब्रिटेन के नाम से। ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड
टुगेदर फॉर्म, अब देखें ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ये तीनों कौन से, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, टुगेदर फॉर्म यूनाइटेड किंगडम। 1922 के बाद आपको यूके करना पड़ेगा। क्लियर। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, सॉवरेन कंट्री है। विच कंट्री शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद द यूके? इट इज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। द आइल ऑफ मैन, ये नाम है जजीरे का। आइल का मतलब ही है एक आइलैंड, एक जजीरा। ये जो है क्या, पार्ट ऑफ इंग्लैंड है, पार्ट ऑफ स्कॉटलैंड है। इट इज क्राउन डिपेंडेंसी, इट इज अंडर किंगडम। ये यूके में इसको फिर भी काउंट नहीं करते हैं। इज आइल ऑफ मैन पार्ट ऑफ द यूके? नो। Which of these is a crown dependency? Isle of Man. Which country is associated with the red dragon on its national flag? कौन सा वो पार्ट है यूके का? इट इज वेल्स। काफी इनके पास राइट्स मौजूद हैं, इनके अपने अपने फ्लैग्स हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है, हम फेडरेशन है, उनके पास कुछ बहुत सारे राइट्स मौजूद हैं। ऑलमोस्ट वो कंट्रीज हैं वहां पे, लेकिन उनको कंट्रीज हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर अंडर द यूके with some agreements. Which country has the St. Andrews Cross on its national flag? और ये है स्कॉटलैंड। It is स्कॉटलैंड। कुछ इनके नाम हैं, कोई इसका ब्लू कुछ मिलेगा आपको फ्लैग कलर स्कॉटलैंड का, और यहां हुआ था एक रेफरेंडम भी फॉर इंडिपेंडेंस, फिर इसको ब्रिटिश ने नहीं माना, यूके ने नहीं माना इसको। Which country is represented by the Red Cross of St. George? वो है इंग्लैंड। अब ये कुछ मिलेगी आपको इस तरह, अब ये वाइट फ्लैग मिलेगा, क्रिकेट मैच देखा आप लोगों ने, और यहां पर रेड क्रॉस मिलेगा आपको कुछ इस तरह, ठीक है। इंग्लैंड का फ्लैग डिफरेंट है, वेल्स का, स्कॉटलैंड का, और जो कंबाइन फ्लैग है यूके का, इट इज कॉल्ड यूनियन जैक, वो काफी डिफरेंट है। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ग्रेट ब्रिटेन इक्वल टू यूके? नो, ये गलत है। इंग्लैंड इक्वल ग्रेट ब्रिटेन? नो, ये भी गलत है। यूके इक्वल इंग्लैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये भी गलत है। हाँ, ये वाला सही है। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, these three are known as Great Britain. Which term traditionally refers to the group of islands including Great Britain and the island of Ireland? कौन सा वो टर्म यूज करते हैं? ब्रिटिश आइल्स ज्योग्राफिकल टर्म है, ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड के लिए, आयरलैंड आइलैंड के लिए, और जो वहां पे आइल ऑफ मैन है, कुछ और वहां पे जजीरे आइलैंड्स, एंड दीज आर नोन ज्योग्राफिकली इन हिस्ट्री ब्रिटिश आइल्स कहलाते हैं ये। इन विच ईयर वाज द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड पास्ड क्रिएटिंग ग्रेट ब्रिटेन? कब हुआ? 1707 को हुआ था ये, ठीक है। और 1922 तक आप कहेंगे इसको ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद कहेंगे आप यूके। इन विच ईयर डिड द एक्ट्स ऑफ यूनियन क्रिएटेड? ये इसका ऑफिशियल नाम है, लेकिन यूं समझें कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड ने एक अग्रीमेंट साइन किया 1801 में, तो दोनों के बीच हुआ पॉलिटिकल यूनियन। फिर which event began in 1066 with the Norman invasion of England, Norman conquest of England? Which monarch was defeated at the Battle of Hastings in 1066? Harold II को शिकस्त दिया था, यानी कि इंग्लैंड को शिकस्त दिया गया था। In which year did most of Ireland leave the UK while Northern Ireland remained part of it? 1922 को हुआ था, जो पहले था ग्रेट ब्रिटेन, और फिर यहां से ये यूके बन जाता है। समझ गए मेरी बात को? तो ये है एमसीक्यूज। अब आपको जो है आखिर में हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास आप लोगों के लिए 2 सेशंस हैं। हमारे पास ये हम शुरू करें, हम हर महीने में शुरू करते हैं एक न्यू ऑनलाइन सेशन जीके वर्ल्ड मैप के लिए। वर्ल्ड मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल, कोई भी एग्जाम हो, सीएसएस है, पीएमएस है, वन पेपर जीके कवर करना चाहते हैं, इंटरव्यू है, हर जगह भाई वर्ल्ड मैप को लाजमी आप कवर कीजिएगा। हिस्ट्री के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, आईआर के लिए,
ٹھیک ہے جی. تو زوم پر ہمارے کلاسز چلتے ہیں. 10 سپٹمبر سے ہم شروع کر رہے ہیں اس کو. 10 سپٹمبر 2026 کو آن لائن کلاسز ہمارے پاس لائیو کلاس ہیں, ریکارڈڈ لیکچرز بھی ہیں. اگر ٹائم پہ آپ فری نہیں ہیں, ڈونٹ وری, اپنا کام کریں, اپنا آپ بزی رہیں. جب فری ہوں لیکچرز کو آپ سن سکتے ہیں, اور 30 ڈیز تک آپ لیکچرز کو سن سکتے ہیں. 30 ڈیز, 3 منتھس اس کا ڈیوریشن ہے. ویک میں ہمارے پاس ہیں 3 کلاسز, تھرسڈے, فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے. 70 منٹس کا کلاس ہوگا, اور ہمارا ٹائم ہے ابھی 7 to 10, یعنی کہ رات کو, شام کو 7 to 10 PM ہم کلاس لیں گے, یا 7 سے کوئی 8-10 تک, یا 8 سے 9-10 تک, یا 9 سے کوئی 10-10 تک, کچھ اس طرح ہم جو ہے کلاس لیں گے. ٹھیک ہے. ہمارا کورس یہ ہے, ورلڈ میپ اینڈ جیوگرافی, پاکستان ہسٹری, کرنٹ افیئرز ہے, آرگنائزیشنز ہیں, ورلڈ ہسٹری کے ڈفرینٹ ایونٹس ہیں, وارز ہیں, ریولوشنز ہیں, ایوریڈے سائنس ہے, آئی کیو ریزننگ, اور بھی یہاں کچھ ادر ڈفرینٹ ایریاز اس میں آ جاتے ہیں. تو یہاں سے جو ہے ہمارا یہ سلیبس یہ ہے. جتنے بھی پیپرز ہیں, ٹیسٹ ہیں, سب کے لیے ہمیں آپ جوائن کر سکتے ہیں. ٹوٹل ہمارا فیس ہے 9000 فار 3 منتھس. ٹھیک ہے. اور اگر آپ 9000 پہ نہیں کر سکتے ایٹ اے ٹائم, تو آپ کے لیے ہم نے ایک آپشن رکھا ہے انسٹالمنٹ کا. 3000 ہے اس کا منتھلی فیس. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہمارا نمبر ہے فار رجسٹریشن 0341959899. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے ہے CSS اینڈ CC کی, جو ابھی ہونے جا رہا ہے MPT اور اسکریننگ ٹیسٹ پریپریشن کے لیے, ہم جو ہیں ارینج کریں آپ لوگوں کے لیے امپارٹنٹ 4000 MCQs, 20 ریکارڈڈ لیکچرز اینڈ PDF, یعنی کہ 200 MCQs ہوں گے ایک لیکچر کے اندر. 4000 MCQs ہم کور کریں گے آپ لوگوں کے لیے, اور PDF اور ریکارڈڈ لیکچرز آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے یہ MCQs کہاں سے ہوں گے؟ یہ ہمارا سلیبس ہے, ورلڈ میپ اینڈ جیوگرافی ہے, انڈو پاکستان ہسٹری ہے, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, کرنٹ افیئرز ہے, ورلڈ ڈسپیوٹس اینڈ ایشوز ہیں, ورلڈ میجر ایونٹس ہیں, ایوریڈے سائنس, آئی کیو ریزننگ, اسلامک اسٹڈیز اینڈ ہسٹری اینڈ سم ادر ایریاز. تو یہاں سے بنائیں گے آپ کے حالیہ میں MCQs. اس کا فیس ہے 4000. اور اگر کوئی اور آپ کا ٹیسٹ ہے MCQs, تو اس کے لیے بھی یہ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 4 سپٹمبر سے 30 سپٹمبر تک ہم آپ کو شیئر کریں گے ڈیلی بیس پہ, 4 سے 30 سپٹمبر تک. اور جو ہیں یہ ہمارا سیم واٹس ایپ نمبر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر. اب یہاں پر جو ہیں, آج یونائٹڈ کنگڈم UK ساورن کنٹری ہے, اور ریپبلک آف آئرلینڈ یہ ساورن کنٹری ہے. باقی جو ہیں یہ پہلے تھا گریٹ برٹن, یہ آج اس کو ہم نہیں کہتے ہیں پولیٹیکل کنٹری. ٹھیک ہے. جزیرہ آئی لینڈ ہے, وہ الگ بات ہے. یہ انگلینڈ, اسکاٹ لینڈ, ویلز, ناردرن آئرلینڈ, دے آر دا پارٹ آف دی UK. اور ریپبلک آف آئرلینڈ یہ الگ کنٹری ہے. آئل آف مین یہ الگ انڈر کنگڈم. اور جو برٹش آئلز ہیں, ان تمام ایریاز کو ہم کہتے ہیں دیز آل ٹیریٹریز, ریجنز نون ایز برٹش آئلز, جہاں پہ 3 میجر آئی لینڈز ہیں, جزیرے ہیں. ایک یہ آئی لینڈ ہے گریٹ برٹن, دوسرا یہ آئی لینڈ ہے آئرلینڈ, تیسرا یہ آئی لینڈ ہے آئل آف مین. باقی یہاں اور بھی آئی لینڈز ہیں. آئی ہوپ کہ یہ چیزیں جو ہیں کافی آپ لوگوں کے لیے ابھی کلیئر ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. جہاں بھی ہیں خوش رہیں, محفوظ رہیں, اپنا خیال کیجئے گا. اللہ حافظ.